Assalamu alaikum students, welcome back to Mathematics Point. Today I'm here with the chapter C functions and linear graphs, and the topic that we will cover today is a function. Okay? And this is the topic of your book D1. So first of all, you should have to know about what is a function. So function is a relationship between two variables. The variable, for example, we take the variable x and y. So function is a relationship between two variables x and y, such that on the behalf of every one function we get input, we get only one output. Okay, whenever we have to put the value of any variable, rather the variable is of x or y, we have to get the answer of exactly one output. So now we will move towards the exercise 6a, question number 8, and we will see, okay, on the behalf of one input, how outputs we will get. Okay, or this is exactly fit on our definition of the function, is it or not? Okay, Ji. So here is the question number 8 of exercise 6a. The equation of a function is y is equal to 2 by 3x plus 1 by 3. Find the value of y when. Okay, first of all, students, this is the equation, linear equation. Why so? Because here we have the highest degree of variable, that is 1. ठीक है, आप देखो आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1. फ्रैक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू है, आपके पास वेरिएबल नहीं है, इसलिए आपके पास लीनियर इक्वेशन है. हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. y की वैल्यू हमारे पास डिपेंड कर रही है द वैल्यू ऑफ x में. x हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है जिसको आप वेरिएबल है जिसको आप पुट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ वैल्यू ऑफ x, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. So in the first case, we have to find out the value of y, and we have two values of x. We will put the values one by one. In the second case, we have the same equation. In the same equation, we will put the value of y on the, by putting the value of y, we'll get the value of x. So let's start the question. So here just write down the equation. Here we have the equation that is y is equal to 2 by 3x plus 1 by 3. Okay, this to know or to understand about the function is very important, especially in the graphs, because in 6b or the question 5, especially the 6b, we have different functions, and by putting the value or find out the ordered pairs of that function, we will find out the relation of the lines or the function, rather they are the parallel or make any geometrical shape. ठीक है, तो आपको functions पे grip होनी चाहिए. So the first case में हमारे पास x की value x is equal to -3, and we have to put out this value of x is equal to -3 in this function. ठीक है, now I just write down the equation y is equal to 2 by 3. Now the next is the variable x. Now what is need to do, we have the value of variable x, that is -3. So put the value of x in the place of x. So here just use the bracket. The meaning of bracket is that this fraction and the term that I'm going to the putting here are going to be multiply. ठीक है, ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर आप ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अब 2 by 3 करके -3 इसी तरह कर देते हैं, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. इसका मतलब है कि ये आपके पास -3 है, ये इसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि आपको ब्रैकेट पुट करना है. देन 1 by 3. अब देखें, अब आपके पास एक कटिंग हो सकती है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, चाहे तो 2 3 6 करके कटिंग कर लें, चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर लें. ठीक है, 3 1 3. नाउ 2 into 2 1 2 and plus minus minus, so -2 plus 1 by 3. So next is 2 3 6, और here we have the minus, so -6 plus 1 divided by 3. और अगर आपको आता है एलसीएम, आप इस तरह से करते हैं तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियोस में ऐसे यूज़ किया हुआ है. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, सो यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 1, सो एलसीएम इज 3. नाउ फ्रॉम विच टर्म वी मल्टीप्लाई योर 1, सो इट बिकम 3, सो डेफिनेटली 3. हम 1 को 3 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जाएगा. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 ऑल्सो विद द न्यूमिनेटर. So 3 2 6, and we have the minus sign plus 1. So you can use both of the methods. Okay, ji, now -6 plus 1 is equal to -5 by 3. Now it is the improper fraction. Now you can convert it in a decimal form as well as in a mixed form. ठीक है, improper में जब भी आपके पास fraction होगी तो आपको यहाँ पे stop नहीं करना, आपने इसको mixed form में लेके आना है. 5 3, so 3 1 3, so subtract 2. So here we have the fraction -1 whole 2 by 3. और अब आप इसको पॉइंट्स में भी ले आ सकते हैं. 5 divided by 3, so this is equal to
1.6। अगर आप डेसिमल में आंसर देना चाहते हैं तो आप इसको 1.66 से आगे आपके पास आ रहा है, आप देख लें तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, ठीक है। पॉइंट के बाद आप एक डिजिट राउंड ऑफ करके अपना आंसर देते हैं। सो दिस इज द आंसर व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ x दैट इज -3, सो वैल्यू ऑफ y विल बी दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन फॉर द सेकेंड वैल्यू ऑफ द x। ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं वही इक्वेशन लिख रही हूँ जो कि मुझे एक दफ़ा क्वेश्चन में दे दी थी। स्टूडेंट बार बार ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैम हम अब कौन सी इक्वेशन लिखें। तो आपके पास अगर क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दी है और चाहे फिर आपको उसको 100 ऑफ द वैल्यूज फाइंड आउट करना हो, तो आप उसी क्वेश्चन को, इसी फंक्शन को रीराइट करेंगे, ठीक है। अब वही मैंने जो फर्स्ट हमने पार्ट में यूज़ की थी वही इक्वेशन, वही फंक्शन यूज़ किया। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास है, एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये x की वैल्यू जो कि मैंने इधर पुट करनी है। सबसे पहले हम इसकी मिक्स फॉर्म सोल्व कर लेते हैं। 2 1 2 + 1, सो इट इज इक्वल टू 3/2। नाउ वी हैव टू पुट आउट दिस वैल्यू इन दिस फंक्शन। सो y इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। सो इन द प्लेस ऑफ x, ये देखिए यहाँ पे x आना था, सो इन द प्लेस ऑफ x आई जस्ट पुट आउट द वैल्यू ऑफ दैट इज द वैल्यू ऑफ x दैट इज 3/2 + 1/3, ठीक है। ये किसकी जगह मैंने पुट किया, इस x की जगह, इस जगह मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। समझे, ये वैल्यू आप इधर पुट कर दें, बाकी सारी इक्वेशन आपके पास सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि आपके पास ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में आप कटिंग कर सकते हैं। सेम टर्म्स को मैंने कटिंग कर दिया, यहाँ पे सारा कट करके 1 आया, 0 नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, 1 होगा कटिंग करके। सो नाउ 1/3 अगेन यू हैव टू टेक द एलसीएम। 3 1 0 3 + 1 4 4/3 अगेन इट इज अ improper fraction, so what is need to do, you have to just divide it to convert it into the mixed form. So 3 1s are 3, and here we get the mixed form that is 1/3. Now the second part of this question is find the value of x when we have the value of y that is y is equal to 1. Okay, now I'm going to do the part B. Here I just have the value of y is equal to 1, ठीक है। Now I just rewrite that equation. The equation was that is given once time, y is equal to 2/3 x plus 1/3. So here I just put out the value of y. Now look at the function and equation that where the y exists. So this is the value variable y. I just put out the value in place of y. Here just put the value y is equal to 1, 2/3 x plus 1/3. The remaining equation will be the same. We just put out the value of y in place of y. So now we have to solve the constant terms. Here I just have the constant terms 1. When I move this constant plus 1/3, so on the other side of the equal, this plus sign will be changed into the minus, because the plus sign will be changed in the minus into the plus, multiply into the divide and divide into the plus. This is going to be vice versa. So 1/3 and 2/3 into x. Now take the LCM. 3 1 0 3 minus 1/3 or 2/3 into x. Now 3 minus 1. Okay, this is equal to 2/3. 2/3 into x. Now we have to find out the value of x, not the value 2/3. ठीक है, 2/3x. So what is need to do? We have to just convert this fraction towards the other side of the equal. Whenever we shift this fraction to the other side of the equal, the terms will be reversed. रेसिप्रोकल, ठीक है। जब भी आप इक्वल की दूसरी तरफ करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 ये वाला जो लिखा हुआ है, अब देखिए 3 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आके टर्म पूरी रेसिप्रोकल बन जाएगी। रेसिप्रोकल क्या होता है, सपोज ए है, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, ठीक है। अगर मेरे पास 2/3 है, 2/3 के रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। टर्म आपकी रिवर्स हो जाती है, उलट जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 3/2 इज इक्वल टू एक्स। सेम टर्म्स कटिंग हो जाएंगी। सो हियर वी हैव 1 एंड x इज इक्वल टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली थी वो थी डेफिनेशन फंक्शन की। सो वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दैट it is a relationship between the two variables x and y. When we have give one input, on the behalf of one input we get exactly one output. So now look at the value of y. We just put one input, we give one input to this function that is y, or on the behalf of this, by solving all the function we just have only one output. ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन यहाँ पे प्रूफ हो रही है कि वन इनपुट दी थी, वन एक वैल्यू दी थी, उसके बिहाफ में चाहे जितनी भी कम्प्लेक्स आपके पास फंक्शन था उसको सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आया दैट इज ओनली वन आउटपुट।
अब इसी का पार्ट बी की सेकंड वैल्यू हम कर लेते हैं. हमारे पास y इज इक्वल है -1/6 के. ठीक है. फंक्शन जो हमारे पास है वो सेम रहेगा. फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3. अब हमारे पास y की वैल्यू जो हमें पुट करनी है वो हमारे पास क्या है, -1/6. तो इन द प्लेस ऑफ y हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं. 2/3x प्लस 1/3. कॉन्स्टेंट इस 1/3 को इक्वल के दूसरी तरफ मूव करा लें. 1/6 ये प्लस 1/3 यहाँ पे -1/3 हो जाएगा. 2/3x एलसीएम ले लें. अच्छा, एक और बड़ी बात, स्टूडेंट्स जब भी सेम टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो वो क्या कर देते हैं, बड़े मज़े से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 6 18 और 18 लिख देते हैं. नहीं, जब भी आपके पास इवन और ओड टर्म्स होती हैं तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं. उनको एक इवन टर्म है, एक ओड है, तो डायरेक्ट एलसीएम लेके, या दोनों एक टेबल में नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं. अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास 6 ही आएगा. उसमें आपने ग्रेटर टर्म लेनी होती है. 3 1 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2 एंड 1. सो 2 3 6. इसमें आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, बल्कि आपके पास जो एक ही टेबल में जो जाने वाली टर्म्स होती है ना, उसमें जो ग्रेटर होता है वो आपके पास एलसीएम आ रहा होता है, अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं. सो डिनोमिनेटर्स इक्वल है हमारे पास. न्यूमिनेटर्स किसी तरह आ जाएगा. -3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है, वो इसके न्यूमिनेटर से भी होगा. 3 2 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है. 2 1 2 यहाँ पे लिख देते हैं. अब माइनस है, दोनों के साथ माइनस है, इसका मतलब कि ऐड होंगे. सेम साइन जब भी हो तो टर्म्स ऐड होती हैं. माइनस माइनस प्लस नहीं लिखना, टर्म्स प्लस हो जाती है हमारे पास और साइन वही रहता है. ठीक है. 6 3 1 3 3 2 6. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं. दैट इज -1/2. अब वही केस आ गया जो हमने पीछे भी किया था कि हमारे पास ये जो टर्म है इक्वल की दूसरी तरफ मूव करके बन जाएगा रेसिप्रोकल. 3 1 3, 2 2 4, और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसी तरह रहेगी. सो हमारे पास आंसर है -3/4. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 बाय सॉल्विंग द फ्रैक्शन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस नाउ है. अच्छा, वो पेज 143 पे, और प्रैक्टिस नाउ उसका जस्ट नेम है, कोई नंबर नहीं है, तो आपके पास वो आराम से सॉल्व हो सकती है. सो आप इस क्वेश्चन को करने के बाद उस प्रैक्टिस नाउ को ट्राई कीजिएगा. आई होप सो इंशाल्लाह आपसे वो सॉल्व हो जाएगी. सो टेक केयर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.